ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ ایران کے وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب اسرائیلی حملے میں جاں بحق، علی لاریجانی کی شہادت کے بعد انتخابی حملے، کئی عمارتیں زمین بوس۔ اسرائیل نے چہارشنبے کو کہا کہ اس نے ایک اور سرکردہ ایرانی عہدیدار کو ہلاک کر دیا ہے، جو 2 دنوں میں تیسری اہم ہلاکت ہے، جبکہ ایران نے اپنے سیکورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے بعد اسرائیل میں سینکڑوں انتخابی حملے کیے اور خلیج فارس میں پڑوسی ملکوں کو بھی نشانہ بنایا۔ تل ابیب کے قریب ایرانی حملے میں کم از کم 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ مشرقی وسطی کی جنگ تھمنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا کہ ایران کے انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب کو کل رات ایک حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیل نے متنبہ کیا ہے کہ تمام محاذوں پر حیران کن کارروائیاں کی جائیں گی۔ ایران نے رات دیر گئے انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب اور سینئر فوجی عہدیداروں کی کل رات ایک حملے میں شہادت کی توثیق کی۔ منگل کو اسرائیل نے ایران کے سرکردہ سیکورٹی عہدیدار علی لاریجانی اور نیم فوجی دستہ بیس فورس کے سربراہ کو ہلاک کر دیا تھا۔ لبنان میں اسرائیل نے حملے جاری رکھتے ہوئے ایران کے تائید کے حامل حزب اللہ جنگجوؤں کو نشانہ بنایا اور بیروت میں کئی عمارتوں پر حملہ کرتے ہوئے کم از کم 12 افراد کو ہلاک کر دیا۔ حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل میں کئی راکٹس فائر کیے۔ اسرائیل کے ایک حملے میں لورستان میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس دوران علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل میں 100 سے زیادہ ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ IRGC نے بتایا کہ آپریشن سچا وعدہ 4 کی 61ویں لہر میں ڈاکٹر لاریجانی کی شہادت کا بدلہ لیا گیا۔ اسرائیل میں ایران کے تازہ حملوں میں 2 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ رات بھر اسرائیلی شہروں خاص طور پر تل ابیب پر حملے ہوتے رہے۔ گیس فیلڈ پر حملے کے بعد ایران کا بدلہ، ایک ساتھ 5 ممالک پر داغی میزائلیں، دی یہ بڑی وارننگ۔ مشرقی وسطی میں چھڑی جنگ اب اپنی سب سے بھیانک تباہی کے موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ چہارشنبہ 18 مارچ 2026 کی رات خلیجی ممالک کے لیے کسی قیامت کی رات سے کم ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے اعلیٰ رہنماؤں کے قتل اور گیس پائپ لائنوں پر حملوں کے بعد ایران نے اسرائیل کے ساتھ 7 عرب ممالک سعودی عرب، UAE، قطر اور کویت پر ایک ساتھ میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ ریاض سے لے کر دبئی تک آسمان دھماکوں سے گونج رہا ہے اور لوگ بنکروں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ ایران نے اپنے آپریشن ٹرو پرومس 4 کے تحت خلیجی ممالک کے توانائی کے ٹھکانوں اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز یعنی IRGC نے خبردار کیا ہے کہ وہ آنے والے گھنٹوں میں دشمن کے بنیادی ڈھانچے کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اشارہ دیا ہے کہ اگر حملے نہیں رکے تو امریکہ براہ راست ایرانی سرزمین پر بڑے بنکر بستر بم گرا سکتا ہے۔ ایران کی جنگ میں زندہ شہید کی انٹری، لاریجانی کی جگہ لیں گے جلیلی، امریکہ کو 11 سال پہلے دکھا چکے ہیں تیور۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ہوئے ایک فضائی حملے میں سینئر سیکورٹی افسر علی لاریجانی کی موت کے بعد ملک کی سیاسی اور سیکورٹی نظام میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لاریجانی ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ تھے اور اپنے بیٹے اور ایک ساتھی کے ساتھ مارے گئے۔ ان کی موت سے ایران کی قیادت میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر لاریجانی کی جگہ کون لے گا؟ خود لاریجانی ایران کے اقتدار میں ایسی مضبوط گرفت رکھتے تھے کہ ان کا جانا معمولی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ علی لاریجانی کی موت کے بعد ایران کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو سیکورٹی کونسل کی قیادت سنبھال سکے۔ ان کے بعد سب سے بڑا نام سعید جلیلی کا سامنے آ رہا ہے، جو ایران کے نمایاں رہنما اور سابق جوہری مذاکرات کار ہیں۔ انہوں نے سال 2007 سے 2013 تک صدر محمود احمدی نژاد کے دور میں مغربی ممالک کے ساتھ مذاکرات کی قیادت کی۔ وہ اپنے سخت اور غیر لچکدار موقف کے لیے جانے جاتے ہیں اور سال 2015 کے جوہری معاہدے کے مخالف رہے ہیں۔ جلیلی کی پیدائش 1965 میں مشہد میں ہوئی۔ انہوں نے امام صادق یونیورسٹی سے سیاسیات میں PhD کی اور وہیں تدریس بھی کی۔ ایران عراق جنگ میں انہوں نے حصہ لیا، جہاں انہوں نے اپنی ایک ٹانگ کھو دی، جس کے باعث انہیں زندہ شہید کہا جاتا ہے۔ ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی، ایک شخص کو سزائے موت۔ ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو سزائے موت دے دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آج ایک ایسے شخص کو پھانسی دی گئی جس پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے کا الزام تھا۔ پاسداران انقلاب سے وابستہ خبر ایجنسی تسنیم کی رپورٹ کے مطابق قریش کیوانی نامی ملزم کو گزشتہ سال جون میں ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ موساد کو حساس مقامات کی معلومات اور تصاویر فراہم کر رہا تھا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ سن 2023 میں سویڈن میں قیام کے دوران قریش کیوانی کا رابطہ ایک آن لائن اشتہار کے ذریعے اسرائیلی ایجنسی سے ہوا۔ بعد ازاں موساد کے ایک اہلکار نے اسے باقاعدہ طور پر بھرتی کیا اور 2 سال تک مختلف یورپی ممالک اور تل ابیب میں تربیت دینے کے بعد اسے ایران میں سرگرمیاں انجام دینے کے لیے بھیجا گیا۔ امریکی وزراء کی رہائش گاہوں کے گرد پر اسرار ڈرون کی پروازیں، سیکورٹی الرٹ۔ امریکہ میں سیکورٹی صورتحال اس وقت تشویشناک ہو گئی ہے جب وزراء اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کی رہائش گاہوں کے قریب ڈرونز کی پروازوں نے ہلچل مچا دی۔ اطلاعات کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی رہائش گاہوں کے اطراف مشتبہ ڈرونز دیکھے گئے، جس کے بعد انٹیلیجنس ادارے الرٹ ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ورجینیا میں واقع ایک حساس فضائیہ کے اڈے کے قریب بھی گزشتہ چند دنوں سے رات کے اوقات میں تقریباً 20 ڈرونز جھنڈ کی صورت میں کم بلندی پر پرواز کرتے دیکھے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ
ड्रोन्स आम कमर्शियल ड्रोन्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार हैं, जिसकी वजह से इन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है। इन ड्रोन्स को कौन और कहां से कंट्रोल कर रहा है, इस बारे में ताहाल कोई वाज़ेह मालूमात सामने नहीं आ सकी हैं। वाक़े के बाद अमेरिकी तहक़ीक़ात इदारों और महकमे दिफ़ा ने आला सतही तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। हुक्काम इस पहलू से भी तहक़ीक़ात कर रहे हैं कि आया ईरान या दीगर गैर मुल्की ताकतें अहम अमेरिकी रहनुमाओं की नकल और हरकत पर नज़र रखने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। मशरक़ी वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान अमेरिकी सरजमीन पर इस नवीयत की सरगर्मियाँ सामने आना तशवीश का बाइस बन गया है और ये सवाल भी उठ रहा है कि आया ये महज निगरानी है या किसी मुमकिन हमले की तैयारी। ईरान के 17 बैलिस्टिक मिसाइल्स ने अहम इस्राएली एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों को 18 दिन मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन ईरान ने सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई के जरिए इसराइल पर जो कहर ढाया है वह सहयूनी मुमलिकत की तारीख में पहली मरतबा है। ईरान ने कामयाब जंगी हिकमत अमली के जरिए एक तरफ इसराइल की फौजी और दीगर अहम तंसीबात को तबाह कर दिया, तो दूसरी तरफ मईशत पर कारी ज़रब ने इसराइल को मुआशी बहरान के दहाने पर खड़ा कर दिया है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के आगे इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम साबित हुआ और माहिरीन के मुताबिक 17 मार्च की इब्तदाई सातों में तिल अबीब के मुसाफात में वाक़ बिन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला इसराइल के मुआशी ज़वाल का आगाज़ साबित हुआ। बैनुल-अक़वामी मीडिया के इसराइली पाबंदियों के बावजूद ईरानी हमलों की कामयाबी और इसराइल में क़यामत ख़ैज़ तबाही के हक़ाइक़ को आश्कार किया है। ईरान ने शहरी इलाकों को निशाना बनाने के बजाय इसराइल की मईशत में अहम मरकज बिन गुरियन एयरपोर्ट पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे और तमाम मिसाइल्स अपने अपने अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहे। महज 4 मिनट के वक्फे में 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स ने एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। 89 अफराद की हलाकत और 234 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। 4 मिसाइल्स 4 एयरक्राफ्ट पार्किंग एरिया, 2 मिसाइल्स टर्मिनल 3 और 1 मिसाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर गिरी, जिसके नतीजे में इसराइल की मईशत का अहम मरकज तबाह हो गया। बिन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले के बाद दुनिया भर से इसराइल के तिजारती रवाबित मुनक़ता हो गए और ये नुकसान इसराइल की तारीख का अब तक का तबाहकुन है, जिसकी फौरी तलाफी मुमकिन नहीं। एयरपोर्ट से तमाम सरगर्मियाँ ठप हो चुकी हैं, जहाँ से सालाना 20 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरीन की आमदरफ्त थी। इसराइल के लिए ये एयरपोर्ट बिजनेस, कार्गो, मेडिकल, टूरिज्म, रेवेन्यू, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी, सप्लाई चेन और मिलिट्री लॉजिस्टिक सरगर्मियों का अहम जरिया था। बिन गुरियन एयरपोर्ट का इसराइल में कोई मुतबादिल नहीं है। हैइफा में एयरपोर्ट ज़रूर है, लेकिन वो बड़े इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आमद और रवानगी की सलाहियत से महरूम है। बहरीन के मुताबिक बिन गुरियन एयरपोर्ट के रनवे की बहाली के लिए 4 से 6 महीने दरकार होंगे। टर्मिनल की बहाली के लिए 18 महीने लग सकते हैं। मलबे की मुकम्मल सफाई के लिए 2 से 3 महीने लग जाएंगे। जनवरी 2027 में एयरपोर्ट की सरगर्मियां बहाल हो पाएंगी। इसराइल का इंतहाई असरी दिफाई सिस्टम भी ईरानी हमलों के आगे नाकाम साबित हुआ। अबनाए हरमुज़ से हिंदुस्तानी जहाज़ों के गुजरने को ईरान ने अवामी कामयाबी करार दिया। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के आगाज़ के बाद से ईरान ने अहम समंदरी रास्ता अबनाए हरमुज़ से जहाज़ों के गुजरने पर पाबंदी आयद कर दी है, जिससे हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में तेल और गैस की किल्लत पैदा हो गई है। वाज़ेह है कि जंगी हालात के जारी रहते ईरान ने 2 हिंदुस्तानी गैस बरदार जहाज़ों को अबनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी, जिससे पीर के रोज़ LPG से भरा एक जहाज़ गुजरात साहिल पर लंगर अंदाज हुआ और दूसरा जहाज़ मंगल को पहुंचा, जिससे मुल्क की आवाम ने इत्मीनान की सांस ली। इस सिलसिले में एक सहाफ़ी ने एक ईरानी तर्जुमान से गुफ्तगू के दौरान सवाल किया कि क्यों कर ईरान ने हिंदुस्तानी जहाज़ को अबनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। इस पर ईरानी तर्जुमान ने कहा, हिंदुस्तान में तेल और LPG की किल्लत का डायरेक्ट असर इसकी आवाम पर पड़ रहा था और हिंदुस्तान की आवाम वो आवाम है जिसने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के जाबिराना हमले और इसमें ईरान की आला क़यादत आयतुल्लाह ख़ामनई के शहीद के जाने पर खुलकर एहतजाज किया। अमेरिका और इसराइल की मजम्मत करते हुए सड़कों पर निकल आए। तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने हिंदुस्तानी अवाम के इस जज्बे की कदर की और इनको तेल और गैस के बहरान से बचाने के लिए हिंदुस्तानी गैस बरदार जहाज़ों को अबनाए हरमुज़ से गुजरने का महफूज रास्ता फराहम किया। तर्जुमान ने इसको हिंदुस्तानी अवाम की जीत से ताबीर किया। मरीजों को बेहोश करके जेवरात के साथ फरार नकली लेडी डॉक्टर हैदराबाद में गिरफ्तार। मरीजों को नशावर इंजेक्शन देने के बाद इनके सोने के जेवरात लूट लेने वाली शातिर खातून और इसके शोहर को सिकंदराबाद जोन टास्क फोर्स और मार्केट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन में 25 साला श्रीशा ओरा, इसका शोहर 30 साला साई कुमार गौड़ शामिल है। श्रीशा ने फार्मेसी की तालीम हासिल की। माली मुश्किलात की वजह से आसानी से पैसा कमाने के लिए इसने अपने शोहर के साथ मिलकर अस्पतालों में चोरी की मनसूबाबंदी की। वो अपनी तिब्बी मालूमात का इस्तेमाल करते हुए बुजुर्ग खवातीन मरीजों को निशाना बनाती थी। वो डॉक्टर का खुलिया बनाकर हॉस्पिटल्स में दाखिल होती और मरीजों को बेहोशी का इंजेक्शन देकर जेवरात लेकर फरार हो जाया करती। 11 मार्च को सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल और चंदानगर के सिटीजन स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी इन्होंने इसी तरह चोरी की। पुलिस ने इस जोड़े के कब्जे से सोने के जेवरात तकरीबन 11 तोले, एक गाड़ी और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। रेवंत रेड्डी की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल पार्लियामेंट के अहाते में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी AICC प्रियंका गांधी से खैर सुगाली मुलाकात की। राज्यसभा के इलेक्शन में कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होने वाले अभिषेक मनु सांघवी और V नरेंद्र रेड्डी का हाईकमान से तारुफ कराने के लिए सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ के हमरा रेवंत रेड्डी नई दिल्ली में थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुंतखब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की और पार्टी के इस्तेहकाम के लिए कोशिश करने का मशवरा दिया। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि, किरण कुमार रेड्डी, अनिल कुमार यादव,
और दूसरे मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने कल रात सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और नरेंद्र रेड्डी का तारुफ कराया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात को आवाम तक पहुंचाने का मशवरा दिया। बावसूख ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल को तेलंगाना की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल से वाकिफ कराया। उन्होंने बजट की तफसीलात के अलावा नाराज कांग्रेस कायद जीवन रेड्डी के मसले पर बातचीत की। चीफ मिनिस्टर ने रियासती बजट में 6 जमानतों पर अमलावरी और दिगर वादों की तकमील से मुतल्लिक वाकिफ कराया। बताया जाता है कि मजालिस मुकामी इंतखाबात में पार्टी के बेहतर मुजाहरे पर हाई कमान के कायदीन ने मसरत का इजहार किया। हाई कमान से मुलाकातों के बाद रेवंत रेड्डी हैदराबाद वापस हो गए। ट्रैफिक चालानात मुआफ करने, उगादी और ईद का तोहफा देने का मुतालबा। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज की हुकूमत से अपील। जनाब जाफर हुसैन मिराज रुकन असम्बली याकूतपुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उगादी और ईद उल फितर के ज़िमन में ट्रैफिक चालानात की मुआफ़ी का ऐलान किया जाए। जनाब जाफर हुसैन मिराज ने कल ऐवान में वक्फ़े सिफर के दौरान मसले को पेश करते हुए कहा कि रियासत में वज़ारत दाखिला का कलमदान चीफ मिनिस्टर के पास है। शहर हैदराबाद में सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का है। शहर में जहाँ देखो ट्रैफिक जाम भी रहती है। ट्रैफिक जाम में ट्रैफिक पुलिस का भी अहम रोल है। इसकी वजह यह है कि पुलिस पहले सड़क पर रहती थी और ट्रैफिक पर कंट्रोल करती थी, लेकिन मौजूदा दौर में पुलिस सड़क पर नहीं बल्कि किनारे खड़ी रहती है। जब से फ़ोन इनके हाथ में आ गए हैं, इनका काम सिर्फ फोटोस लेना है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना नहीं है। रुकन असम्बली याकूतपुरा ने कहा कि वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं इसका कुछ हल निकाले। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए फोटोस लेना मसले का हल नहीं है। जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि गाड़ी की कीमत 20,000 रुपये नहीं रहती, इस पर 40,000 रुपये के चालानात रहते हैं। इस कदर बड़ी रकम कहाँ से अदा की जाए। रुकन असम्बली याकूतपुरा ने कहा कि कल उगादी और परसों ईद उल फितर हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि वो उगादी और ईद उल फितर दोनों को मिलाकर आवाम को तोहफा दे। जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि ऑटो वालों के चालानात 75% मुआफ़ किए जाएं, कार और स्कूटर्स वालों के चालानात 50% मुआफ़ करने का ऐलान किया जाए। हुकूमत अगर इस ज़िमन में फौरी ऐलान करती है तो आवाम खुश हो जाएगी, इनके ईद और त्यौहार अच्छी गुजरेगी। वज़ीर उमूर मुक़न्नना श्रीधर बाबू ने जाफर हुसैन मिराज को बताया कि ट्रैफिक की मुश्किलात को नोट कर लिया गया है, मुतल्लिक़ा महकमों के जरिए इक़दामात किए जाएंगे। ईदगाह मीरालम और ईदगाह खदीम मादन्ना पेट में इंतजामात का जायजा। सदर नशीन वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कल ईदगाह मीरालम का रुकन असम्बली बहादुरपुरा जनाब मोहम्मद मुबीन के साथ दौरा करते हुए नमाज ईद उल फितर के इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरे में बल्दी, बरक़ी, अबरसानी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक, वक्फ बोर्ड के अलावा दिगर महकमे जात के अहदेदार भी मौजूद थे। जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि रियासत वक्फ बोर्ड की जानिब से ईदगाह मीरालम और ईदगाह खदीम मादन्ना पेट में नमाज ईद के इंतजामात किए जाते हैं। रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर ईदगाह के रास्तों पर मरम्मत, पीने के पानी और वजू के लिए वाटर कैंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट और तिब्बी सहूलतों के लिए भी नुमाइंदगी की जा चुकी है। ईदगाह मीरालम के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में मजलिस की नुमाइंदगी पर कई मुकामात पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं। उन्होंने ईदगाह के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों का तफसीली दौरा करते हुए ईदगाह में जारी कामों का जायजा लिया। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से शामियानों की तनसीब का काम तेजी से जारी है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि ईदगाह मीरालम और ईदगाह खदीम मादन्ना पेट दोनों ईदगाहों में नमाज ईद उल फितर 10 बजे अदा की जाएगी। तेलंगाना में एलपीजी की कोई खिल्लत नहीं। तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने वाज़ेह किया है कि रियासत में एलपीजी सिलेंडरों की कोई खिल्लत नहीं है और सप्लाई मुस्तहकम और काफ़ी है। चारशंबे को रोज़ जारी करदा एक प्रेस रिलीज में हुक्काम ने बताया कि मंगल को कुल 2,35,678 एलपीजी सिलेंडर्स फराहम किए गए, जो कि आम रोज़ाना की औसत 2,15,151 सिलेंडरों से ज़्यादा है। सारिफिन को मशवरा दिया गया है कि वो सिलेंडर रिफिलिंग के हवाले से किसी भी किस्म की घबराहट या परेशानी का शिकार ना हो। तकसीम के अमल को हमवार बनाने और किसी भी किस्म की रुकावट को रोकने के लिए हुकूमत ने सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के दफ्तर में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया है। इस सेंटर में सरकारी हुक्काम के साथ साथ बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नुमाइंदे भी शामिल है। स्कॉलरशिप्स के लिए स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स जारी ना करने पर बरहमी। फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स के लिए स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स जारी ना किए जाने पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि फीस बाज अदायगी की रकूमात वसूल ना होने पर स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स को अपने पास रखने का तालीमी इदारों को कोई हक हासिल नहीं है। जस्टिस सूर्यपल्ली नंदा ने गुज़िश्ता यौम तालीमी इदारों की जानिब से तलबा के असल सर्टिफिकेट्स को वापस ना किए जाने के मामले में दायर करदा मुकदमे की समाअत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी तालीमी इदारे को इस बात का हक हासिल नहीं है कि वो फीस की अदम अदायगी की बुनियाद पर सर्टिफिकेट्स अपने पास नहीं रख सकते। जस्टिस सूर्यपल्ली नंदा तेलंगाना की तालीमी इदारों की जानिब से फीस की अदम अदायगी पर इंतजामिया की जानिब से सर्टिफिकेट जारी न करने की शिकायत का जायजा ले रही थी। उन्होंने मुकदमे की समाअत के दौरान कॉलेजेस के इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो जिन स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स रोके गए हैं इनकी फौरी इजराई के इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि तलबा या हुकूमत की जानिब से अदाशुदनी बकायाजात की वसूली के लिए कॉलेज इंतजामिया को इस बात का हक हासिल नहीं है कि वो स्टूडेंट्स की मिल्कियत यानी सर्टिफिकेट्स को बतौर ज़मानत अपने पास रखें। वाज़ेह है कि तेलंगाना में कॉलेजेस के इंतजामिया की जानिब से स्टूडेंट्स की
फीस बाज अदायगी स्कीम के बकायाजात की अदम वसूली की बिना पर सर्टिफिकेट्स जारी न किए जाने की शिकायत आम हो चुकी है और इस सिलसिले में तेलंगाना कौंसिल बराए आला तालीम ने रियासत की तमाम जामियात के तहत मुल्हिका कॉलेजेस के लिए जारी की गई हिदायत में तलबा के सर्टिफिकेट्स रोकने से मना किया है, लेकिन इस पर अमल आवरी न होने की कई शिकायत अदालत तक भी पहुंची है, क्योंकि इन अहकामात पर अदम अमल आवरी के नतीजे में तलबा को शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है और कई तलबा को अपना सिलसिला तालीम जारी रखने के अलावा बेहतर मुलाजिमत के हुसूल में भी रुकावटें पैदा होने लगी हैं। आइंदा चंद दिनों के दौरान बारिश का इम्कान। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशुमुल हैदराबाद में शदीद गर्मी के कई हफ्तों के बाद चहारशंबे को सुबह के वक्त कई इलाकों में बारिश हुई। मंगल की शाम से चहारशंबे की अलग सुबह तक हैदराबाद और इसके नवाही अजला बशुमुल विकाराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी में 8 मिलीमीटर से 12.5 मिलीमीटर तक औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। कई अजला में शदीद बारिश हुई। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक जिले कुमरम भीम आसिफाबाद के दही गाँव में सबसे ज्यादा 75.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद विकाराबाद के कलकाचरला 56.8 मिलीमीटर, आदिलाबाद के बेला 53.88 मिलीमीटर और कोमरम भीम के बीजूर 52.8 मिलीमीटर शामिल है। महकमा मौसमियात हैदराबाद ने आइंदा चंद दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशकशी की है और बताया है कि हफ्ते के अख्ताम तक मौसम अबर आलूद रहने और वक्फे से बारिश के साथ तेज हवाओं का इम्कान है। आंध्र प्रदेश में माजूरीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने चहारशंबे को दिव्यांग शक्ति स्कीम का आगाज करते हुए मुल्क की उन चुनिंदा रियासतों में शामिल हो गई है जहां माजूर अफराद को मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम की जाती है। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने इस स्कीम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत की कामयाबी के बाद हुकूमत ने अब माजूर अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए इस स्कीम को वसअत दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एन लोकेश के साथ स्कीम के आगाज के बाद चीफ मिनिस्टर ने खुसूसी बस में इस्तेफादा कुनंदगान के साथ सफर भी किया। सफर के दौरान चीफ मिनिस्टर और दूसरे कायदीन ने माजूर अफराद के साथ तबादला ख्याल करते हुए इनके तजर्बात से वाकफियत हासिल की। इन्हें दरपेश मसाइल समझने की कोशिश भी की गई। सरकारी बहबूदी इक़दाम के ताल्लुक से माजूरीन की आरा भी हासिल की गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महज 21 महीने में मखलूत हुकूमत ने आवाम की बहबूद के लिए कई इक़दाम शुरू किए। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ही ऐसी वाहिद हुकूमत है जो माजूरीन को माहाना 6,000 रुपये वजीफा फराहम कर रही है। क़ब्ल महज 500 रुपये वजीफा दिया जाता था। सफर के बाद चीफ मिनिस्टर ने इस्तेफादा कुनंदगान के लिए खुसूसी ज़ोहराना का भी एहतमाम किया। मगरबी एशिया में कशीदगी का असर, सोने की कीमतों में भारी गिरावट, चांदी की चमक भी पड़ी फीकी। सराफा बाजार में जुमेरात को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई, जिससे सरमायाकारों को बड़ा झटका और खरीदारों को खुश होने का मौका मिल गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने की कीमत तकरीबन 1,000 रुपये कम होकर 1,52,049 रुपये फी 10 ग्राम पर आ गई। वहीं चांदी की कीमत में और भी बड़ी कमी दर्ज की गई और ये 4,300 रुपये कम होकर 2,43,907 रुपये फी किलोग्राम पर पहुंच गई। काबिल जिक्र बात यह है कि सोना अब तक की बुलंद तरीन कीमत से तकरीबन 28,000 रुपये सस्ता हो चुका है। गुज़िश्ता 29 जनवरी को सोने की कीमतें 1,80,000 रुपये फी 10 ग्राम की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। इसके बाद से मुसलसल उतार चढ़ाव के दरमियान कीमतों में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। माहिरीन के मुताबिक सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह ताजिरों की जानिब से मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग और फिजिकल तलब में कमी है। जब कीमतों में तेजी से इजाफा होता है तो सरमायाकार मुनाफा निकालने लगते हैं, जिससे कीमतों में कमी वाक़ई होती है। इसके अलावा मार्केट में खरीदारों की कमी भी कीमतों पर दबाव डाल रही है। ईद से पहले दिल्ली में मुसलमानों को मुबैना कत्ल की धमकियां, अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का अमित शाह को खत। ईद के मौके पर दिल्ली के उत्तम नगर में मुसलमानों के कत्ल की खुली धमकी और दिल्ली पुलिस की मुबैना बेअमली पर तशवीश का इजहार करते हुए अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मकतूब हवाले किया है। अरकान पार्लियामेंट ने अपने लेटर में कहा है कि ईद के मौके पर उत्तम नगर इलाके में मुसलमानों के खिलाफ मुबैना कत्ल की धमकियां दी जा रही है, जो अमन व अमान के लिए संगीन खतरा है। इसलिए इस मामले पर फौरी तवज्जो देना जरूरी है। मकतूब में दिल्ली पुलिस की मुबैना बेअमली पर भी सवाल उठाया गया है और वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया गया है कि वो फौरी मदाखलत करते हुए दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई की हिदायत दे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। यह खत मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके पेश किया, जिनमें JMM, CPIM, समाजवादी पार्टी, RJD, DMK और NCP समेत दीगर जमातें शामिल हैं। हिंदुस्तान की तिब्बी इमदाद की पहली खेप ईरान पहुंची, हज़ारों मुतासरीन के लिए राहत फराहम। हिंदुस्तान की जानिब से ईरान को तिब्बी इमदाद की पहली खेप चहारशंबे को तेहरान में ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी को पहुंच गई। इस इमदादी सामान में दवाएं, तिब्बी आलात और हंगामी इस्तेमाल की अशिया शामिल हैं। ये इमदाद उस वक्त फराहम की गई जब ईरान को जारी अमेरिकी इसराइली अस्करी मुहिम के असरात का सामना है, जो 28 फरवरी से जारी है। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में जनीवा के सफ़ीर अली बहरीनी के मुताबिक अब तक इस तनाज़े में 1300 से ज़्यादा अफराद हलाक और 7,000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं।
عمرہ ویزا کی اجرا کی آخری تاریخ 21 شوال۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا، حج سیزن کے آغاز سے پہلے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے خواہش مندوں کے لیے انتظامیہ کا اہم اعلان۔ وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرہ ویزا کی اجرائی کی آخری تاریخ 21 شوال 1447 ہجری ہے، جبکہ عمرہ زائرین کی مملکت آنے کی آخری تاریخ 15 شوال مقرر کی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ ویزا پر حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ عمرہ زائرین زیادہ سے زیادہ 21 ذوالقعدہ تک مملکت میں رہ سکتے ہیں۔ وزارت حج نے عمرہ کمپنیوں کے ذمہ داران کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں مقررہ وقت پر عمرہ زائرین کی واپسی پر سختی سے زور دیا گیا۔ وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع نے رمضان سیزن کے دوران عمرہ کمپنیوں کے ذمہ داروں کے بھرپور تعاون اور فراہم کی جانے والی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے عمرہ سیزن کے حوالے سے ضوابط اور ہدایت پر عمل کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا تاکہ عمرہ زائرین واپسی کے شیڈول پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے نسک ٹریک کے ذریعے روانگی کی ڈیٹا کو اپ ڈیٹ رکھا جائے۔ رحمت کی برسات، خانہ کعبہ میں تہجد کے بعد ایمان افروز منظر۔ مکہ مکرمہ میں واقع مسجد الحرام اور خانہ کعبہ میں نماز تہجد کے بعد بارش کا روح پرور منظر دیکھنے میں آیا، جس نے زائرین کے دلوں کو مسرور کر دیا۔ بارش کے دوران ہزاروں کی تعداد میں موجود عمرہ زائرین اور نمازیوں نے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ عبادات جاری رکھی، جبکہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے والوں نے اس رحمت الہی کو خاص نعمت قرار دیا۔ بارش کے قطرے جب کعبۃ اللہ پر برسنے لگے تو پورا حرم ایمان افروز مناظر پیش کرنے لگا۔ زائرین کا کہنا تھا کہ مقدس مقام پر بارش کا نزول اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت کی علامت ہے، جس نے عبادت کے ماحول کو مزید پرسکون اور روحانی بنا دیا۔ امریکہ نے کیا ابنائے ہرمز میں بڑا حملہ، ایران کے میزائل مراکز تباہ، عالمی تیل سپلائی خطرے میں۔ امریکی فوج نے منگل کے روز ایک بڑا آپریشن کرتے ہوئے ابنائے ہرمز کے قریب ایران کے میزائل مراکز کو نشانہ بنایا۔ امریکی فضائیہ نے تقریباً 5000 پاؤنڈ وزنی بموں کے ساتھ ایران کے ساحلی علاقوں میں موجود میزائل سائٹس پر حملے کیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اینٹی شپ کروز میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا جو بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ یہ کارروائی آپریشن ایپک فیوری کے تحت کی گئی ہے۔ ادھر ابنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے کئی ممالک کو تیل اور LPG کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے، جبکہ ٹرمپ کے اپیل کے باوجود ناٹو اور دیگر ممالک نے وہاں فوجی مدد بھیجنے میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ ایران پر حملہ نہ کرتے تو تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی، امریکی صدر کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جاری جنگ کو درست قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ نہ کرتے تو ممکنہ طور پر جوہری جنگ چھڑ سکتی تھی جو تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو جاتی۔ اوول آفس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے اس فوجی مہم کو ایک انتخاب نہیں بلکہ ناگزیر اقدام قرار دیا اور کہا کہ اگر ہم نے ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ نہ کیا ہوتا تو ایران ایک مہینے میں جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا اور اسے اسرائیل اور مشرقی وسطی کے خلاف استعمال کرتا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایسی جنگ ہوتی جس میں کچھ بھی باقی نہ رہتا، اور موقف اختیار کیا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف کارروائی کر کے ایک عظیم کام انجام دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جو کوئی بھی جوہری ہتھیاروں سے لیس ایران کی حمایت کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی دہرایا کہ ایران کے پاس اس وقت نہ بحریہ ہے، نہ فضائیہ، نہ فضائی دفاعی نظام اور نہ ہی قیادت۔ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہم کس سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی کو کوئی نہیں جانتا، وہ سب ایران کی اعلیٰ قیادت مر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے اوباما دور کے جوہری معاہدے کو بھی تنقید کا اشارہ بناتے ہوئے کہا کہ اس نے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ ان کے مطابق اگر میں اس معاہدے سے دستبردار نہ ہوتا تو ایران 3 سال پہلے ہی ایٹمی ہتھیار حاصل کر چکا ہوتا اور پہلے اسرائیل اور پھر امریکہ کو نشانہ بنا چکا ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر گزشتہ جون میں B-2 اسپرٹ طیاروں کو ایرانی فضائی حدود میں نہ بھیجا جاتا تو ایران ایک مہینے کے اندر جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا۔ دوسری جانب ایران نے ان تمام دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی حکام مسلسل اس بات کی تردید کرتے رہے ہیں کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے زور دے کر کہا کہ ایران صرف خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے، ہمسایہ ممالک کو نہیں۔ ایران جنگ میں اتحادیوں کی جانب سے مدد کی درخواستیں رد ہونے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن نیٹو احمقانہ غلطی کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ جیسے طاقتور ملک کے صدر کے طور پر کہنا چاہتا ہوں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیٹو احمقانہ غلطی کر رہا ہے، نیٹو کو اس وقت خطے میں ہونا چاہیے تھا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔